Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fine. Student, watch your videos daily, and when you are watching the video, student, please note down the important points, and if there is any confusion, okay, if there is any confusion, student, then note down that things in your rough copy, and in online classes you can ask your doubts with your teacher. Is it clear? And in my previous video, student, I explained you the two process, evaporation and condensation, and these process plays a very important role. These process plays a very important role in the water cycle. And what is water cycle? The change of form of a water in nature. The change in form of water in nature is called it water cycle. So student, the change in form of water in nature, or you can say the change in form of water in nature is called the water cycle. Now student, all of you open page number 48. Open page number 48 of your book. See, in today online classes, even some students have confusion in water cycle, because so today, let, with the help of a book, I read the one line of the book, and then I tell you these things I told you when I teach you water cycle, so that in more simple manner you can understand. Open page number 48, 48 of your book. We are reading water cycle. In nature too, water keeps changing its form. Is it clear? What he want to say, that in nature too, water keeps changing its form. Is it clear? See, I told you earlier also, there are three forms of a water, that is solid, liquid, and gas form. Solid is ice, liquid is water, and gas is water vapor. So it is written, in nature too, water keeps changing its forms. What does it mean? It means that what are the things present in nature? That is sunlight, air, water, soil, plants, animals, all these things are present in the nature. And see student, even in nature the water is changing its form. तो ये, इसने ये बात क्यों बोली कि इन नेचर में वाटर अपनी फॉर्म चेंज करता है? क्योंकि एक्चुअली व्हेन आई एम टेलिंग यू अबाउट डिफरेंट चेंज, जब मैंने तुम्हें पढ़ाया था कि वाटर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज होता है, तो हमने तुम्हें डेली लाइफ के भी एग्जाम्पल दिए थे. यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? तब हमने तुम्हें डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल दिए थे. डे टू डे लाइफ मीन्स, फॉर एग्जाम्पल,
if your mother kept water in the refrigerator freezer, then what's happened? After 2-3 hours, you observe the water, it will change in the form of a solid, and that is known as ice. ठीक है? You are understanding what I am saying? मेरे कहने का मतलब है जो वाटर की 3 फॉर्म्स हैं, इनका मैंने तुम्हें एक्सप्लेनेशन डे टू डे लाइफ में भी दिया था, इन आवर डे टू डे लाइफ. ऐसा होता है ना? इन द हाउस आल्सो, इफ यू केप्ट वाटर इन द रेफ्रिजरेटर फ्रीजर, सबके घर में फ्रिज है ना, जिसमें पानी ठंडा रहता है, उसमें एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसको फ्रीजर कहते हैं. अगर उसमें वाटर रख दोगे एंड यू विल ऑब्जर्व आफ्टर 2 or 3 hours, then what you will see? What you will see? You will see there is no water. You will see something solid, and that solid is known as ice. लेकिन ये जो आइस है, ये आइस किसकी सॉलिड फॉर्म है? वाटर की. तो ये डे टू डे लाइफ में मैंने एग्जांपल्स बताए थे. फॉर एग्जांपल, देयर मदर कुकिंग इन द किचन, मैंने आपको बताया था. शी बॉइल्स द वाटर. बॉइल्स मतलब गर्म करना. नीचे गैस ऑन कर दी मम्मी ने, फायर उसमें किया मैच स्टिक से, देन एक फ्लेम निकलता है, इट स्टार्ट बर्निंग, एंड जब मदर इज हीटिंग द वाटर, देन यू विल सी स्टीम. तुम्हें लगता है स्टीम जैसे निकल रही है. इज इट क्लियर? तो व्हाट हैपन, दैट इज ए गैसियस फॉर्म ऑफ ए वाटर, जिसे हमने क्या बोला? वाटर वेपर. वाटर वेपर बोला. इज इट क्लियर? और यू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर इन योर डे टू डे लाइफ. आप खाना खाते हो, 6 to 8 glasses वाटर पीते हो, बिकॉज वी नो दैट वाटर इज वेरी गुड फॉर आवर डाइजेशन ऑल्सो. इज इट क्लियर? तो भी आप लोग वाटर का बहुत यूज करते हो, कुकिंग में भी वाटर का यूज करते हो. इज इट क्लियर? तो ये एग्जांपल मैंने डे टू डे लाइफ में दिए थे कि वाटर को सॉलिड फॉर्म में देखना है तो केप्ट द वाटर इन द रेफ्रिजरेटर. वाटर को वेपर फॉर्म में देना है डे टू डे लाइफ, जो हमारे घर में अक्सर होता रहता है. डे टू डे लाइफ में वाटर को वेपर फॉर्म में देखना है तो यू सी व्हेन योर मदर इज कुकिंग इन द किचन. व्हेन प्रेशर कुकर होता है, जब उसमें स्टीम आती है, आवाज होती है, तो देखोगे आप लोगों को व्हाइट कलर की बहुत सी स्टीम उड़ती हुई दिखती है. तो वो क्या है? गैसियस फॉर्म है, दैट इज वाटर वेपर. और जो वाटर है जो आप लोग ड्रिंक करते हो, ये करते हो, दैट इज अ लिक्विड फॉर्म ऑफ ए वाटर. ये मैंने डे टू डे लाइफ में बताता है. नाउ व्हाट डज मीन इन नेचर? इन नेचर में भी वाटर क्या है? अपनी फॉर्म्स को चेंज कर रहा है. एंड इन नेचर the changes happens due to the what? Due to the sunlight and wind. Is it clear? What happens in nature also? ये जो चेंजेस हमने वाटर में देखी, ये डे टू डे लाइफ का एग्जांपल था. डे टू डे लाइफ. बट नेचर में अगर आप देखोगे वाटर में चेंजेस हो रही हैं, तो दैट इज ड्यू टू सनलाइट. दैट इज ड्यू टू सनलाइट एंड विंड. इज इट क्लियर? नाउ फर्स्ट लाइन पढ़ता हूं. आई विल रीड द फर्स्ट लाइन. इन नेचर टू वाटर कीप चेंजिंग इट फॉर्म्स. In nature too, water keep changing its forms. What does it means? It means that when it is in solid form also, it is in liquid form also, and it is in the gaseous form also. It means it is in the form of a ice also, it is in the form of a water also, and it is in the form of a water vapor also. Mountains में आप lot of snow देखते हो, तो वो क्या है? That What is that? स्नो. जो तुम्हें माउंटेन्स दिखते हैं पूरे कवर होते हैं व्हाइट स्नो से, ग्लेशियर्स हैं.
जहाँ टेम्परेचर इतना लेस होता है, व्हेन द टेम्परेचर इज लेस, तो वाटर की जो बूंदे होती हैं, ड्रॉप्स ऑफ वाटर, अपने आप फ्रीज हो जाती हैं एंड दे चेंज इन द सॉलिड फॉर्म, दैट इज नोन एज आइस। लिक्विड फॉर्म में वाटर को देखना है तो रिवर में देख लो, सी में देख लो, ओशंस हैं, पाउंड्स हैं, लेक्स हैं, एंड वाटर वेपर फॉर्म में ड्यू टू द हीट ऑफ द सनलाइट वाटर इवेपोरेट करता है। सनलाइट जब वाटर के सरफेस पर पड़ती है एंड व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज इट स्टार्ट चेंजिंग इन द फॉर्म ऑफ ए गैस। क्योंकि जब हमसे कोई पूछता है कि इज वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर, तो व्हाट इज आवर आंसर, हम बोलते हैं यस। विच फॉर्म, वाटर वेपर फॉर्म। तो ये हो गया नेचर में, ये क्या हो गया बेटा, नेचर में। और जो रेफ्रिजरेटर का एग्जाम्पल बताया था, कुकिंग के समय बॉइलिंग का एग्जाम्पल बताया था, और वी ड्रिंक द वाटर ये भी बताया था, दीज आर इन आवर डे टू डे लाइफ। ये जो वाटर में फॉर्म्स में चेंजेस हो रही हैं, ये हमारे डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज में हो रही हैं। लेकिन हेयर जो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस हो रहा है, ये नेचर में हो रहा है। ठीक है, ये चेंजेस कहाँ हो रही हैं, नेचर में हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि पहाड़ों पे बर्फ बहुत ज्यादा करने के लिए हम इतना बड़ा रेफ्रिजरेटर कहाँ से लाएंगे। सोचो, क्या दुनिया का इतना बड़ा फ्रिज हमने देखा है जिसमें इतनी बर्फ हो कि पूरे पहाड़ों पे बर्फ आ जाए? नहीं देखा। इतने बड़े ओशन होते हैं, रिवर्स होते हैं, कितना तुम लोग वुड बर्न करोगे उसको, पानी को हीट करने के लिए? कर सकते हो? नहीं कर सकते। वो कौन कर सकता है? दैट इज सनलाइट, दैट इज light of the sun, that is light of the sun. So these example are of day to day life activities, and these example of the nature, these example of the nature। क्योंकि नेचर में एयर भी है, वाटर भी है। इज इट क्लियर? एयर, वाटर, लैंड है आपका, सॉइल है। इज इट क्लियर? सो ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। तो दीज चेंजेस हैपनिंग इन द नेचर, जो हमारे अर्थ पे हो रही हैं चेंजेस। ठीक है, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ सी स्टूडेंट, ओपन बुक, page number 48. In nature too, water keeps changing its forms. So I give you the difference also in nature, because first example are of day to day life and other are the example of a nature that I explained you. Now see student, first point, the sun heats the water in the river, ponds, lakes, seas and oceans. This water evaporates into the air as a water vapor. So student, I already told you what are the water bodies on earth. River, is it clear? River, ponds, lakes, sea water, oceans. Okay, now student, what happens? In my previous episode I make all the picture and then explain you water cycle. Now in this video, step by step, see what happened. The sun heats the water in the river, pond, lake, seas and ocean. This water vapor evaporates into the air as water vapor. What does it mean? It means, for example, this is a water. For example, this is a, what is this? This is a water, and this is your sun. So what's happened? When the sunlight falls on the water, so due to the heat, due to the heat of sunlight, okay, see this is a river,
फॉर एग्जाम्पल मान लो ये रिवर में क्या है, वाटर है. दिस इज योर सन. नाउ व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन दिस वाटर, देन व्हाट्स हैपन? ड्यू टू द हीट ऑफ सनलाइट, water water evaporates. वाटर इवापोरेट. सो सनलाइट जब इस वाटर पे पड़ी, हीट, ठीक है, सो विद द हीट ऑफ द सनलाइट वाटर इवापोरेट्स होने लगा, गर्म हो गया, बिल्कुल गर्म हो गया पानी. और जब वो बहुत गर्म हो गया तो वो इवापोरेट होने लगा. अब किस फॉर्म में चेंज हो गया? गैस फॉर्म में. किस फॉर्म में चेंज हो गया? गैस फॉर्म में. और जब वाटर गैस फॉर्म में चेंज होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं? वाटर. वी से इट एज ए water vapor. Is it clear? We say it as a water vapor. Now single step, very simple step. Light of the sun falls on the water and water start evaporates, मतलब गर्म होने लगा, बॉइल होने लगा, गर्म होने लगा. अब वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर क्या बताया आप लोग को? हमेशा 100 डिग्री सेल्सियस. So now what's happened? Water evaporate होने लगा. It means it is changing in the form of a gas. गैस बनने लगा. वाटर से अब क्या फॉर्म में चेंज होने लगा? गैस बनने लगा. And this gas form of water is known as water vapor. This is the first step. This is the first step of water cycle. This is the first step of water cycle. ठीक है. What is given in the first point? Water कहाँ था? River, pond, lake, sea, ocean. ठीक है. This is sun, this is water. Due to the heat of the sun, what happen? Water evaporates. गर्म होने लगा और वो गैस फॉर्म में चेंज होने लगा. ठीक है. And this gas form of water is known as water vapor. और ये जो पूरी प्रोसेस हुई जिसमें वाटर हीट होके गैस फॉर्म में चेंज होने लगा, whole process is known as evaporation. Whole process is known as evaporation. Is it clear kids? इस पूरी प्रोसेस को वाटर हीट होके गैस फॉर्म में चेंज होने लगा, उसको वाटर वेपर कहते हैं. सो होल दिस प्रोसेस इज नोन एज evaporation. Whole this process is known as evaporation. Is it clear? Now let's move to the next point. Page 48. Point number 2. High up in the sky, this water vapor comes in contact with the cold air. It cools down to form drops of water. It cools down to form drops of water. Now see, what does it mean? Let's rub the board. Second point. When water change in gas form, then it become very light in weight. उसका भार क्या हो जाता है? बहुत कम हो जाता है. And then this water vapor rises in the sky and moves up. अब जो water vapor बने, this water vapor, what's happened to them? Moves up. ये वाटर वेपर ऊपर जाने लगे. तभी मैंने इसको इस एरो से दिखाया था ना. सो when they reach high in the sky, then what's happened? There is cold air. High sky में उसे क्या मिला? Cold air. For example, here this is a water vapor and here it come in contact with, here this is a cold air, here water vapor है. Water vapor gas form है. Is it clear? Now high up in the sky, it contact with this cold air. Cold air से इसका contact हुआ. Now what's happened?
व्हेन दिस वाटर वेपर टच विद कोल्ड एयर, तो क्या होगा, वाटर वेपर का टेम्परेचर क्या होने लगेगा, कूल होने लगेगा। वाटर वेपर क्या होने लगेंगे, कूल होने लगेंगे। एंड व्हेन द वाटर वेपर कूल, देन इट चेंज इनटू ए ड्रॉप ऑफ, into drops of water। आया समझ में? सेकेंड पॉइंट इज क्लियर। फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट, वाटर वेपर बने थे उसमें, वाटर वेपर। नाउ आफ्टर दैट दिस वाटर वेपर मूव्स अप because they become very light, and high up in the sky these water vapor, this is come in touch with a contact with a cold air, it means this water vapor come contact with a cold air, then what's happened student, वाटर वेपर कूल्स, उससे क्या हो गया, वाटर वेपर क्या हो गए, कूल हो गए। अब जब वाटर वेपर कूल्स हुए, देन दे चेंज इनटू ए ड्रॉप्स ऑफ वाटर में चेंज हुए, वो क्या हो गए, दे चेंज इन ड्रॉप्स ऑफ वाटर। दिस इज द सेकेंड स्टेप, दिस इज द सेकेंड स्टेप। नाउ सी द थर्ड, सी इन योर बुक पेज नंबर 48, those tiny drops of water join together to form clouds। now see ये small drops बन गए water के। now what's happened, these drop join together, ये क्या होने लगे, ज्वाइन होने लगे आपस में, और इन्होंने क्या बना दिया, क्लाउड्स। दिस इज योर थर्ड स्टेप, व्हाट दे फॉर्म द क्लाउड्स। हाउ दिस टाइनी ड्रॉप्स, ये टाइनी ड्रॉप्स तुम्हें कहां से मिले थे, व्हेन वाटर वेपर कॉन्टेक्ट विद कोल्ड एयर, then it change into a drops of water। now these drops of water join, and they join to form the clouds, and they join to form the clouds। is it clear how the formation of clouds take place? is it clear to all of you? now let's start with the fourth point, please watch this video, then your concept of water cycle is totally clear। now these are the 3 points। fourth point, now after the formation of the clouds what happens, अब जब क्लाउड्स भी बन, ऐसा नहीं है मैंने यहाँ 2 ड्रॉप वाटर के बनाए हैं तो 2 ड्रॉप वाटर ने इतने बड़े क्लाउड्स बना दिए, ऐसे नहीं। बहुत से वाटर वेपर इवेपोरेट होके गया ना, बहुत सा वाटर इवेपोरेट होके ऊपर गया ना, तो सबने स्मॉल ड्रॉप्स बनाए एंड दे जॉइन टू फॉर्म द क्लाउड्स। इज इट क्लियर? So fourth point, inside the clouds the tiny water drops join to form a big drops, and when they become heavy they fall as rain। now what's happened, ये प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूअस है, वाटर सन हीट करेगा, वाटर वेपर फॉर्म में चेंज होगा। सो नाउ इनसाइड द क्लाउड्स व्हाट हैपेंस, दीज स्मॉल ड्रॉप्स आपस में और ज्वाइन कर करके बड़े बड़े पानी की बूंदे बना देंगी, और जब इनका वेट बहुत हैवी हो जाएगा, अनएबल टू स्टोर इन द क्लाउड, देन दे स्टार्ट कम्स ऑन द ग्राउंड अगेन इन द फॉर्म ऑफ ए रेन, इन द फॉर्म ऑफ ए रेन। जब ये और ज्यादा पानी के ड्रॉप्स, बिग ड्रॉप्स हो गए और उसे अब वो स्टोर नहीं कर सकता है क्लाउड्स, सो दीज ड्रॉप्स कम डाउन अगेन, वाटर ग्राउंड से ही अप गया था, नाउ अगेन फ्रॉम द अप वाटर इज कमिंग डाउन, इसलिए मैंने बोला था एरो ऐसे होगा। इज इट क्लियर? इन द फॉर्म ऑफ ए रेन, इन द फॉर्म ऑफ ए रेन। इज इट क्लियर? नाउ सी द फिफ्थ पॉइंट ऑफ योर बुक, in places that are very cold the water drops freeze into ice and come down as snow। what does it mean? it means that अभी मैंने बोला ये जो वाटर, जो क्लाउड्स नहीं अब इतने हैवी हो गए, नहीं रोक सकता है, तो वाटर कम्स डाउन एज ए रेन, बारिश की बूंदों की तरह। ठीक,
Now, but what's happened, student, in some places, but student they are, जैसे कुछ प्लेसेस ऐसी होती है जहां क्लाइमेट वेदर क्या है, बहुत कोल्ड है, ठीक है, वेयर द वेदर इज नॉट वेरी कोल्ड, देन इट कम इन द फॉर्म ऑफ अ रेन, ओके, एंड द प्लेसेस वेयर द वेदर इज वेरी कोल्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट द माउंटेन्स एंड ग्लेशियर्स एरिया, ठीक है, वहां वेदर बहुत कोल्ड होता है। तो अब जब ये वाटर के ड्रॉप्स जब नीचे रेन की तरह जब आने लगते हैं और टेम्परेचर बहुत कोल्ड होता है, तो दीज रेन ड्रॉप फ्रीज, ये जम जाते हैं, इन विच फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ ए आइस, जैसे रेफ्रिजरेटर में होता था, रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में वाटर को रख दो तो वो फ्रीज हो जाता था लेस टेम्परेचर की वजह से, और इट चेंज इनटू ए सॉलिड फॉर्म दैट इज आइस। सो स्टूडेंट, where where the weather is very cold, so what happened to these raindrops, they freeze in the form of a ice, and they come down from the clouds in the form of a snow, they come from the clouds in the form of a snow। कई बार आपने न्यूज चैनल में देखा होगा कि आज माउंटेन्स एरिया में बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुआ, बहुत ज्यादा स्नोफॉल हुआ, ऐसे न्यूज आप पेपर में भी पढ़ते होंगे, मे बी यू वॉच दिस टाइप्स ऑफ न्यूज इन द न्यूज channels also। Is it clear? Now see the sixth point, the rainwater flows back to the rivers, ponds, lakes and oceans। देखो हमने वाटर साइकिल की बिगनिंग कहां से की थी, बिल्कुल स्टार्टिंग हमने वाटर साइकिल की कहां से की थी, मैंने कहा था व्हाट आर वाटर बॉडीज, रिवर्स, पाउंड्स, लेक्स, सी, ओशन, यहीं से हमने क्या की थी, स्टार्टिंग की थी वाटर साइकिल की। एंड व्हेन यू रीड द सिक्स पॉइंट, द रेन वाटर फ्लोज बैक टू द रिवर्स, अब क्लाउड से जब वाटर बैक आया तो वो कहां गया, इट कम बैक, इट कम्स बैक टू rivers, ponds, lakes, sea, oceans, that is student, that is water cycle, that is water cycle। rivers, pond, lake, sea, ocean से ही water above गया था, is it clear? And in the last, from the clouds again water come back into the rivers, ponds, lakes, sea and ocean। This is water cycle, it's very simple, please watch the video, and even now if there is any confusion student, you can ask in the online doubt class, okay। Now see, this cycle of change of water in nature is called it the water cycle। So what I teach you all these things, in the last what we get the point, this cycle, this cycle of change, this cycle of change of water is called it the, is called it the water
Is it clear? So student, watch the video and note down the points which I told you. Thank you all of you.